So why don't we start walking? देखो मोरनी हाँ साहिल, दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस प्लेस. यहाँ पे ना मोर मोरनी वगैरह खूब अपन को मॉर्निंग में देखने को मिल जाती है. ये इनहेल करेंगे राइट. 1 2 3 गो. ये 40 सेकंड नहीं किया. वाओ. हाँ 40 सेकंड तो it's so hard, you know, because it's really tempting to keep. So basically practice सिर्फ एक ही है. Observe yourself. Are you maintaining the hygiene of your thoughts? That is body hygiene. That is an interesting term. Yeah. What does it mean? What does thought hygiene mean? अपने आप को ना डिस्ट्रैक्शन से हटाने के लिए आपको अपने आप को शुरुआती में एक डिस्ट्रैक्शन देना पड़ेगा. तो Wow. And I love how the background music is also supporting our conversation. in general, how many breaths we take in a minute? मेरी मर्जी. Will my body shake? मुझे रोना है. I'm so hungry. तो जितना आपका खाना alive होगा ना, उतना अच्छा है. I think moderation in everything is the key. हाय एवरीबॉडी. आज आप बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होने वाले हो क्योंकि BII Growthcast has completely changed its format. So I welcome you all to a brand new episode of BII Growthcast. आज हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं I'll tell you in a while, but let me tell you that mornings are my absolute favorite. मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि यार everything in the world is right, everything in the world is okay. So we have an incredible yoga trainer, a yoga expert with us today. Hi Deepa ma'am. Hi Prema. So Deepa ma'am has been in my life for the past 2 months, but it has felt like an eternity. I honestly love that, you know, I got to meet her. मैंने बहुत कुछ योगा के बारे में इनसे सीखा. And I personally am a huge yoga enthusiast. And I have learned a lot about my body in the past 2 months than I probably ever did in say a few years. So Deepa ma'am, first of all, welcome. Yes, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं भी हुई, नहीं. चलो Thank you बढ़िया. so much. It's a Perfect wonderful है. place. Yeah, it's an amazing Yeah, place, and especially the sound of the birds is like amazing. Yeah. So why don't we start walking? So what about you? Are you generally a morning person or an evening person? Like a night person, a night I owl? have always been a morning person. Yeah. Yeah, Okay. always. I remember myself, you know, when I Hmm. was a child. Okay. मतलब स्कूल जाते थे ना जब हम, हाँ. तो मेरी मम्मा Hmm. मेरे ब्रदर को और सिस्टर को उठाती रहती थी. Okay. I used to be someone who will be ready, कपड़े Yeah. पहन के नहा धो के Yeah. किचन के बाहर मम्मा टिफिन. Hmm. I think that's my natural Okay. thing. Yeah, Okay. I've been always a morning person. Used to be a night owl, like 3 बजे तक जग के बढ़िया, you know, Hmm. you're talking to people and enjoying your life. Don't you think कि because of social media, because of Instagram, आजकल क्या होता है कि we are in that 30-second world. Hmm. So somewhere our brains are also trained कि हर 30 second में हमें कुछ नया distraction चाहिए. Hmm. And because of that, we also tend to forget a lot of things. Hmm. अरे ये चाबी उठाई कि नहीं उठाई, अरे मेरा फोन तो यहीं रह गया. Hmm. माइंडफुलनेस खत्म होती जा रही है. वो मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी फील करती हूँ. तो उस चीज को टैकल करने के लिए इस प्राणायाम द राइट वे? I think overall practice. It's Yeah. not, सिर्फ प्राणायाम नहीं कहेंगे अपन. Overall practice. Let's not, separate the yoga practice Yeah. as, pranayam differently. Yeah. अगर collectively देखें तो for sure you will Hmm. see that you are more present in the moment. You're not all over, the places in your head. Yeah. वो कम होने लगता है धीरे Okay. धीरे. Yeah. Okay. The absent mindedness ना हाँ. वो धीरे धीरे कम होने लगती है when you start practicing yoga. And you are more of a present kind of person being in the moment with, yoga practice. But do you think it's also become a norm that people are generally like that, have become absent-minded, or people have मतलब attention to detail somewhere has diminished a lot? Yeah, because overconsumption is there, na? Yeah. There is a lot happening in the name of a lot, too much is happening. सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको. हाँ. हमको सब चाहिए. हमको ये भी हाँ. पता करना है कि आज यूएस में क्या हो रहा है. हमको ये भी हाँ. पता करना है. हाँ. सब कुछ हमें पता होना चाहिए. But I think the most important Yeah. figure in our life or entity in our life, or Yeah. I don't know how to say this, but Yeah. is missing, and that is you. मतलब Yeah. आपके अपने साथ Yeah. conversations नहीं हो रहे हैं, आपके अपने साथ self reflections नहीं हो रहे हैं, आपकी Yeah. अपने साथ बातचीत नहीं हो रही है, Yeah. आपको अपना breath का awareness नहीं है, अपने posture का awareness नहीं है, but मुझे जानना है कि भी बाहर क्या चल रहा है. Right. Yeah.
I think there is no problem in, you know, being. Hmm. Some people in general are very curious and they want to know about everything in general. Yeah, But what's happening within is Hmm. also very it's really important. important ना. Yeah. So जब मतलब BII ग्रोथकास्ट का भी हमारा एजेंडा यही था कि यार Hmm. फास्ट कंटेंट तो हर जगह हो गया, अब थोड़ा स्लो करते हैं चीजों को. सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ यू नो टर्निंग दैट इनटू समथिंग स्लो. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में योगा ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है इस चीज को समझने के लिए. एंड सो आई वांट टू आस्क यू दिस कि in a world where things are constantly changing, things are constantly, I mean, it's everything is so fast. How do you find yourself so grounded? मतलब कैसे योगा आपकी हेल्प करता है? क्या आप कुछ स्पेसिफिक ब्रेथ वर्क बता सकते हो जो यूजुअली वर्क करता है? We can do that when we get to, you know, a more sort of like an open area. But what are some practices you always incorporate कि हाँ, अगर आपको एंग्शियस फील हो रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, तो instantly you incorporate that into your daily life. तो मुझे लगता है हमको सिर्फ वहां तक लिमिट नहीं करना है Yeah. कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है और मुझे इसको ठीक करना है ना. Yeah. दिस इज लाइक बियॉन्ड. मतलब हेल्थ फॉर श्योर यू आर गोइंग टू अचीव हेल्थ, बट हेल्थ से आगे भी बहुत सारी बातें होती हैं योग अभ्यास में. इट्स लाइक अटेनिंग द फुल पोटेंशियल दैट यू आर बोर्न विद. Yeah. हम में से कितने लोगों को पता ही है कि क्या हम्म. पोटेंशियल के साथ हम बोर्न हुए हैं. तो चलो, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पुट अप किया कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर पोटेंशियल क्या है. और सच में मुझे भी नहीं पता. तो आज आप बताओ, क्या पोटेंशियल है मुझ में, क्या पोटेंशियल है आप में, या जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनमें क्या पोटेंशियल है? मतलब अगर मैं सबसे बेसिक प्रैक्टिस की बात करूं, अपन जैसे प्राणायाम की बात कर रहे थे, तो if you see in general how Yeah. many people can hold their breath for 5 seconds. Okay. How many people can hold their breath for 5 seconds? Yeah. Okay. You want to sit? We can. यहाँ पे बैठ सकते हाँ हैं. हाँ बिल्कुल. आ जाओ. आइडियल जो ब्रेथ बताया गया है, मतलब प्राणायाम की शुरुआत कहाँ से होती है. अभी तो हम प्राणायाम की बात करते हैं कि इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, एंड इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट. Yeah. ब्रेथ रिटेंशन Yeah. is pranayam. Okay. Yeah, so if you're holding your breath, you're doing pranayam. Hmm. अब जो स्टार्टिंग नंबर है वो क्या है? Hmm. Just guess. What do you think? The start 10 is तो होना ही चाहिए. at 10 least. सेकंड. हाँ. तो 12 सेकंड का inhalation. Okay. Inhalation. Okay. Yes. Yeah. Multiplied by 4. Yeah. Retention. Yeah. Okay. Multiplied by 4. 4. Should be there. Yeah. 40 Okay. seconds. Okay. मतलब 12. Sorry, if we are doing it for 12. 48. 48. Yeah. And then 24 is the exhalation. Exhalation. Okay. And then again 12 Yeah. seconds ka Retention. Retention. हाँ. After exhaling. after exhaling. Okay. So it's like, you know, you are involving your intercostal muscles when you are inhaling, exhaling. तो internal intercostal को भी कर रहे हो, external intercostals को भी कर रहे हो involve. Yeah. तो वो तो चलो muscular चीज है, Yeah. लेकिन अब ये potential हमको थोड़ा सा वो लगेगा कि यार देखा जाए तो 1 मिनट में मैं कितना ब्रेथ ले रहा हूँ. एक complete cycle complete. साइकिल से साइकिल भी कंप्लीट नहीं कर रहे हो आप. Yeah. just right. half. Yeah. Just imagine. Oh wow. तो this is the potential and ये starting है. So what happens when you start achieving the starting of it? तो हम, अगर आपने सुना होगा, योग में कहते हैं कि you create your reality. What you think starts becoming. Yeah. तो अगर आप इतना रेगुलेट कर लोगे ना अपनी ब्रेथ को, आपका माइंड रेगुलेट हो जाएगा. एंड वंस योर माइंड इज, यू नो, रेगुलेटेड एंड इन योर हैंड. Yeah. अभी तो ऐसा है कि अरे मुझसे संभल नहीं रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, आई नीड हेल्प, ऐसे करके ना. पर जब ये होने लगता है ना, this is when you know, things starts changing. You create your reality once you have regulated or have your breath handy with yourself. Okay. Yeah. Got it. So let's try it. Should we try the breathing? Like let's see how long. आप count करना और आप भी hold करना, देखते हैं मैं आपको match कर पाती हूँ. Okay. Start. Okay. So I in general, yeah, हाँ normally कर लेते हैं. Inhale for मतलब आप ऐसे कर लो. Do we have timer? हाँ, तो मैं मात्रा बता देती हूँ ना. I'll count. You'll count? Okay. Let's start. पहले inhale करेंगे, right? 1, 2, 3, go. तो ये था, अपन ने 40 सेकंड नहीं किया. वाओ. हाँ, 40 सेकंड तो
40 सेकंड का अपन ने रिटेंशन नहीं किया. हाँ, but still it हाँ. feels You instantly will Yeah. feel कि हाँ, settle calm. down. Yeah. And also, if I'm not wrong, because if यहाँ मेरे ख्याल से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है as compared to जहाँ हम लोग रहते हैं, तो because of that also maybe it's feeling much better. मतलब आपने बताया कि जब हम ये ब्रीदिंग को रेगुलेट करना शुरू करते हैं तो हमारा माइंड रेगुलेट होना शुरू हो जाता है and things start to manifest for you as it is. So a lot of people who have been meditating for years and years and years and you know, what have they transcendentally, pata nahi, I don't know what's the word, but what have they really achieved for their mind? Where are they? Can they travel anywhere? मतलब जो सब चीजें हम सुनते हैं, हमारे सूत्रों में क्या लिखा है इसके बारे में कि what have they really achieved or what are they achieving? What can we, people who are living, क्या बोलते हैं, गृहस्थ जीवन, हम क्या अचीव कर सकते हैं? I think हमें तो सबसे पहले अचीव करना है the calmest state of mind because we being in a family we have to do so many things. Yeah. And we have to maintain मतलब और बहुत कुछ go through भी करना पड़ता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे लिए तो सबसे फर्स्ट जो अचीवमेंट और गोल हमको डिसाइड करना है वो ये है कि I be responsive. Yeah. More responding, not you know reactive. क्योंकि घर में ऐसा होता है, बहुत चीजें होती है, इसने ये बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, और ये छोटी छोटी बातें हम This is constant and it's every day. Yeah. और मैंने अपने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा भी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस पे इतना ध्यान मत दो. डोंट यू नो डाइवर्ट योर एनर्जी टुवर्ड्स दिस बिकॉज whatever you give your energy to will have power over you ना. तो इससे अच्छा अपनी एनर्जी आप खुद को दे दो. तो give your energy to yourself by breathing better. Wow. तो मैंने ना एक कहानी सुनी थी, वो कहानी ये थी कि इंसान के पास ना, ऐसे समझो कि एक आदमी था, राजू नाम रख लेते हैं, राजू था, राजू के पास 2 कुत्ते थे, ठीक है, एक को वो रोज खाना डालता था और दूसरा देखा वो कमजोर हो गया था क्योंकि उसको रोज खाना नहीं डालता था. तो ये स्टोरी का ये पर्पस था कि एक है आपकी नेगेटिविटी और एक है आपकी पॉजिटिविटी. जिसको भी आप खाना डालोगे ना वो ज्यादा ग्रो करेगा और वो ही आपको इम्पैक्ट करेगा और वो ही आपको लाइफ में डायरेक्शन देगा. हाँ, तो कई बार हमको ना विलिंगली अपनी विल पावर से चूज करनी पड़ती है चीजें, क्योंकि हम ना चूज नहीं कर रहे होते हैं. ऐसा लगता है कि और समहाउ ना यू विल सी हमारे जीवन में इतनी अच्छी चीजें हो रही होती है, लेकिन हमारा ध्यान नेगेटिव जो है ना, एक दिन में खराब चीज हो गई ना, पता नहीं क्यों वो पूरा अटेंशन ले लेती है हमारा. और दिन में 100 चीजें, मतलब मैं कहूंगी 199 चीजें अच्छी होंगी ना, वो हमारा अटेंशन ले ही नहीं पाती. एंड दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू थिंक अबाउट. क्योंकि वो सिर्फ आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा यू नो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करता है, आपकी ब्रीदिंग को इफेक्ट करता है, आपका मूड इम्पैक्ट करता है, उससे आपका 1 दिन 2 दिन खराब होता है, फिर कम बैक करने में टाइम लगता है, तब तक कुछ और हो जाता है. राइट. सो ऐसा मैंने सुना है कि women have different cycles, weekly cycles है ना, अलग अलग होती हैं. मुझे नाम आई थिंक इतना क्लियरली पता नहीं, बट एक ल्यूटियल फेज होता है, जैसे कि एक ओव्यूलेशन फेज होता है, इस टाइप के बहुत सारे फेजेस होते हैं. तो हर फेज में ना women tend to have different moods. ठीक है, मेन के साथ ऐसा नहीं होता है, दे आर मोर स्टेबल. सो स्पेशली अगर हम women की बात करें स्पेसिफिकली, so do you think we sometimes use this as an excuse for our emotions and moods, or can this also be regulated? I think you know because there is no understanding and I think इसमें partners का भी रोल होता है. Okay. I think a lot of men हमारे, मतलब मैं अभी वालों की बात नहीं करूंगी, पहले की भारत में ना हम बात नहीं करते हैं. मतलब हमको educate करना चाहिए that this is how a women body is and these are the phases she goes through. And you know they have these things. But क्योंकि education missing है ना, इसलिए हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं. Right. क्योंकि once you know about something it's easy to deal with it ना, because the men, I think it's mostly the men part as well, they need to be educated about this. और बात हमारी है तो हमें अगर पता है अपने बॉडी के बारे में तो we should take the charge. Absolutely. है ना, हम ऐसे नहीं ब्लेम कर सकते, अरे अभी तो ये चल रहा है ना इसलिए जस्ट मेरा ये वाला फेज चल रहा है. अच्छा, तो आप ऐसा बताओ कि आपने काफी टेक्स्ट पढ़े हैं, आपने स्क्रिप्चर्स तो नहीं बोलूंगी, बट आपने योगा के बारे में काफी कुछ पढ़ा है. अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप बोलोगे कि ये खजाना है, कि you just need to hold on to these specific teachings from our you know yogic texts or scriptures, whatever we can call it, what would those points be?
I think practice. See, I have always been a practice person. Yeah. Because practice changed my life. If I, recall myself, I wasn't a person who was very comfortable with myself. Okay. Yeah, I wasn't somebody कि हाँ मुझे मजा आ रहा है अपने साथ. Self love नहीं था. नहीं था. मतलब मुझे अकेला छोड़ दोगे ना, I won't enjoy my company. Yeah. और डर लगता था और all sorts of fears were there. And I wouldn't, मैं थोड़ा शायद खराब शब्दों में ही बोलूंगी, I was not somebody who will like myself. Okay. But ये change हो गया. और ये change, I think practice. मतलब I don't think, but I'm pretty sure practice changes that. Yeah. मतलब self education ही नहीं थी ना. There was no self education कि why am I feeling such way, और कितना हम ना बहुत ज्यादा physical body को importance देते हैं. और it's just एक चीज है आपके बारे में ना. There are multiple layers and dimensions of yourself. Yeah. तो जब आप वो जानोगे ना, तो आपको अपने आप से वैसे ही प्यार हो जाएगा. Okay. Yeah. तो So self love is one thing. Self love is one thing. Yeah. Yeah. So you get to know yourself through the practice. Like you get to know your body, you get to know your breath, you get to know your thoughts, what kind of thoughts you are having. So self love तो होता ही है. So what are a few things that are completely forbidden in yoga? कि ये सब तो आपको करना ही नहीं चाहिए, आप कभी successful practice नहीं हो पाएगी. मुझे लगता है gossiping. Yeah. Gossiping. Okay. मतलब gossip से आपका जो एयर बॉडी का है ना, वो imbalance होता है. Okay. हाँ. Really? हाँ. और ये कहते हैं अगर बात बिगड़ा तो सब बिगड़ा. But it's so hard, because it's really tempting to keep having conversations. अरे I got to know this information and all of that. But then again you're right कि वो आपकी energy भी तो कितना खाता है. बहुत ज़्यादा. A few things also you mentioned, I think last time we spoke, कि there are certain things that you should not do in yoga. Yeah, there are like साधक तत्व and बाधक तत्व, obstructing factors. Okay. हाँ, तो once you commit to the practice, तो वो बोलते हैं कि आपको अत्याहार, over eating नहीं करनी है. Okay. प्रयास मतलब too much, over practicing भी नहीं करना है. ठीक है. हाँ, जनसंग मतलब too much public contact नहीं रखना. Too much public contact नहीं रखना है. हाँ. Okay. Because when you are meeting अभी तो time ही socializing का है ना. आप अपने बारे में बताओगे नहीं, आप लोग जानेंगे नहीं, तो आप market कैसे करोगे? So this is business language, but yoga language में you don't share about your experiences, about your practice, only with your teachers, not with everybody. Okay. हाँ. और प्रयास, too much practicing, और over talking. Okay. हाँ, ये सब मना किया गया है. Okay. And being too strict about the rules कि ये तो ऐसे ही होगा. हाँ. तो जब अपन बात कर रहे थे ना कि योगा प्रैक्टिस क्या सुबह ही करनी चाहिए, सुबह कर सकते हो, तो श्योरली सुबह करो, बट नहीं हो पा रहा है तो शाम को कर लो. तो अपने यहाँ पे ना कहते हैं मन नहीं मारना चाहिए. मुझे लगता है नहीं, मन मारना सीखो. मन मारना तो सीखना पड़ेगा. और इट स्टार्ट्स विद क्योंकि हमारी जब ट्रेनिंग थी ना, तो हमको ये बताया जाता था कि जो सबसे अच्छी चीज लगती है ना, उसका त्याग कर दो. नहीं, वो सामने रखो. अच्छा. और उसको खाना नहीं है. बिकॉज ऐसा भी क्या है कि आप अपना टेस्ट बड्स को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हो. मतलब the food outside is governing your body. The food outside taking decisions for you. Because it looks so tempting. क्योंकि वो आपके ओवरपावर कर चुका है ना, तो इट्स नॉट अ डिसिप्लिन. आपकी टंग आपको डिसिप्लिन में रहने नहीं दे रही है. तो आपको अपनी लाइफ में कब ऐसा फील हुआ कि हाँ, नाउ आई हैव टेकन कंट्रोल ऑफ माय इमोशंस? कोई एक स्टोरी अगर आप शेयर कर सको. मैं सच बताऊं, ये एकदम से नहीं हुआ. ओके. नहीं, बट एक मोमेंट ऐसा आया कि लगा हाँ अब मैं कर सकती हूँ, अब देयर इज नोबडी दैट कैन स्टॉप मी. वो ना ऐसे हुआ नहीं, ये धीरे-धीरे शिफ्ट्स होते गए. ओके. हाँ, इनिशियली बॉडी पे शिफ्ट हुआ. I was like everybody, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे I'm working on. बट जैसे आसन प्रैक्टिस है, तो मुझे भी लगता था सुबह कि अरे यार, उठ तो मैं जाती थी जल्दी, लेकिन आसन पे जाना है, बॉडी दुख रही है, बट आई यूज्ड टू गो. मतलब वो हल्का सा पुश करना पड़ेगा खुद को. अब खाने का मन कर रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड देखा है, रोज बाहर खाना खाते हैं सब ना. तो मत जाओ, बोलो आज तो मैं नहीं खाऊंगी बाहर का. टुडे इज द डे आई डिसाइड फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट ईटिंग आउटसाइड. तो ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस मैं लेने लगी. So after 30 people start feeling it's normal to have body pains. Is it really normal for your body to start having pains? अगर आप कुछ नहीं करोगे तो what is the definition of aging? Tell me. क्या है एजिंग की डेफिनेशन?
हमें तो यही पता है नंबर बढ़ रहा है, हर साल जन्मदिन आ रहा है, आज 30 के हो गए, कल 50 के हो गए। तो रिड्यूस्ड स्पेस, या है ना? जब ओके स्पेस कम होने लगता है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि एजिंग Yeah. हो रही है। तो स्पेस कैसे कम होना? हम्म तो इन योर जॉइंट्स, या ठीक है? ठीक तो है, क्या हो जाता है? रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, रेंज ठीक ऑफ है, मूवमेंट, ठीक बिकॉज है, देयर इज लेस स्पेस इन द या जॉइंट। ब्रेथ में स्पेस कम हो गया। व्हाट इज a pause in your breath, creating the Yeah. space between inhalation and exhalation. या तो वो कम हो गया, राइट, क्योंकि हमारा shallow breathing हो गया ना, हाँ तो हमारा, और कुछ लोगों का तो माउथ से होता है। That is aging. That is aging. And the last one, you will love it. Thoughts में कम space होना. Having rapid thoughts. या That is sign of aging. तो अगर आप अपनी बॉडी को मूव करते हो, मतलब हो सकता है आपका पासपोर्ट कहे कि आप 40 के हो, लेकिन हो सकता है योर कि बॉडी आपका saying something else. 20, और हो सकता है आप 20 के हो, बट योर पासपोर्ट, योर पासपोर्ट सेज 20, बट योर बॉडी सेज 45 साल। हाँ क्योंकि मैंने देखा है, मैंने टीनेज को आते हुए देखा है, मैं मतलब थोड़ा सा मुझे चिंता भी हुई कि मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, एक जगह पे हम टिक के खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार ये सही नहीं है, ये उम्र नहीं है। राइट, तो improving the space, increasing the space between two joints, breath या and thoughts is reverse aging. गॉट इट, साउंड्स गुड यार। मतलब मुझे लगता है अगर ये सारी चीजें हम आधा आधा घंटा भी अपने रूटीन में मॉर्निंग में ऐड करने लगे, Yes. इवनिंग में, whatever time allows, I think things can change a lot. It's getting sunnier. Do you want to get some breakfast? Yeah, what do you think? Yeah, let's go. Guys, और जयपुर आने के बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया, the foot alignment of the people, तो अपने पैरों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, Legs hip distance apart. okay, Yeah. So first close your eyes. okay, Just normally observe your breath, how your breath is moving. Normal Okay. breath, huh? Let's take 2 to 3 seconds and observe. yeah, Close your eyes. okay, Observe. आर्म्स को ऐसे बाहर टर्न करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। And now observe your breath. Relax your facial muscles. अब वापस पूरा बॉडी छोड़ दो। Again observe your breath. Do you see the change in your breath? yeah. What? I think it was shallower, थोड़ा deep हुआ। See? When you do like this, it gets deeper. Yeah. Close together. Yeah. ये सही नहीं है आपके पैर के लिए। आप feet में designed to have Stay grip apart. of the floor. Yeah. Okay. और दिन में एक बार कोशिश करके अपने पैर में insert all your fingers. See, you won't be able to, क्योंकि इतना space ही नहीं है। ये आपको करना है। Wait. बैठ के करना है, हाँ, खड़े होके नहीं। खड़े होके तो अभी बैलेंस ही नहीं बैलेंस नहीं बनेगा। हाँ, It's yeah, you're right. It's Yeah. very hard. है ना? हाँ, हो गया, अब हो गया। हाँ, पर ये पूरी फिंगर्स डालिए। देखो, आप ना आगे वाली डाल रहे हो, हाँ। पूरी। The base of the That's finger. not possible. Yeah. Yeah. So we need that, and that's for the Yeah. health of our feet. Oh, okay. दिन में एक बार आप टीवी देखते हो ना, आप टीवी देख रहे हो, बैठ जाओ टीवी पे, and then you do this. Okay. With Let your me try. feet. Yeah. This is easier Yeah. to So do. tell this to your family, your friends, and everybody. ऐसा silicone के toe separators भी आते हैं. Right. Yeah. हाँ जी. So you can wear those as well, but I would highly recommend. But it's so funny that when these products are also shown, कभी ये बताया नहीं जाता कि आप ये भी कर सकते हो। हाँ, और ये जरूरी क्यों है ना? ये जरूरी इसलिए है कि आपका जब पैर के टोस साथ में आ जाता है ना, आपका जो ये inner edge of the foot है, ये drop हो जाता है। When it drops, you start having pain in the internal inside of your knee. Got it. तो इसको spread करना, and then arch अपने आप lift हो जाएगा। Arch lift होते ही you have activated your foot. Now once your foot is active, your all entire legs will be active. पूरी legs active होते ही आपका core engage हो जाएगा। So how you stand is very important. Okay, got it. So House of Cards. House of Cards आज हमारा concentration test करेगा, basically जिसकी हम बात करते हैं। Focus, 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 focus. Meditation is focus. Breath work is focus. Everything is focus. Basically, breath work builds focus. So, while we are trying to build this with focus, we will talk about focus. How does focus come? Meditation क्या है? किस तरीके से हम अपनी highest state पे पहुंच सकते हैं? Achieve करने के क्या तरीके हैं? So, let's begin this conversation. So basically, more than focus, I would say observation. Okay. जो अपना पतंजलि योग सूत्र में 8 लिम्ब प्रैक्टिस बताई गई है, Okay. उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात हुई है।
तो बेसिकली प्रैक्टिस सिर्फ एक ही है, ऑब्जर्व योरसेल्फ। तो ऑब्जर्व हाउ यू आर बीइंग विद अदर्स, ठीक है, ऑब्जर्व हाउ यू आर बीइंग विद योरसेल्फ, योर ऑब्जर्वेशन, ओके, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज आसन, observe how your posture is. Oh, The moment you lose your observation, what happens? You collapse. yeah, Yeah, it's like having a CCTV camera. yeah, You are under observation. तो क्या करते हो आप? सीधे हो जाते हो ना? तो it's like that only. ठीक है, तो when you are present, constantly observing yourself, accidents थोड़ा कम होते हैं. Observe your breath. The Yeah. moment you lose your awareness from your breath, you start having shallow breath. Observe your thoughts. okay, तो ये सारा जो गेम है ना, ये ऑब्जर्वेशन का है. ऑब्जर्व योर सेंसेस. खुशबू आती है बढ़िया सी खाने की, आहा हा, सारी सेंसेस एक्टिवेट हो जाती है ना. ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेंसेस. एंड देन देयर इज धारणा, देन ध्यान, देन समाधि. सो दिस इज 8 limbed practice. ओके, हाँ, तो यही होता है अष्टांग योगा जिसे हम अष्टांग योग. यस. ओके, और ये दिया गया था महर्षि पतंजलि के द्वारा. महर्षि का मतलब होता है द ग्रेट सीयर. मैं तो हमेशा ये सोचती थी 4 ही तो होते हैं हाथ पैर, ये अष्टांग क्या होता है समझ सा नहीं आता था, मुझे लगता था होता होगा कुछ. नाउ आई एम एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग. Detailed. It's Yeah. like it's not just 8 limbed, it's detailed practice. Yam, Okay. niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, ध्यान, समाधि. तो ध्यान तो देखो तुम ऑलमोस्ट एंड में आ रहा है, 7th limb of practice. ओके, तो जो गेम है ना, वो ऑब्जर्वेशन ही है. मतलब जो प्रैक्टिस है ना, वो ऑब्जर्वेशन है. So the moment you start losing your awareness, या, you start collapsing in your posture, your breath becomes shallow, या, and your senses starts playing the game. ओके, हाँ, ठीक है, तो अगर आपने ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस छोड़ दी, तो मैं तभी कहती हूँ जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना कि मैम मतलब योगा रूम में नहीं होता है कि आपने 1 घंटा अपन आए एंड देन वी आर डूइंग योगा प्रैक्टिस फॉर 1 hour एंड दैट्स इट. एंड यू कॉल योरसेल्फ आई एम अ योगा प्रैक्टिशनर. नहीं, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ आसन प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है, इट इज अ लाइफस्टाइल प्रैक्टिस. तो ये पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल होना चाहिए ना. सो आपको अपना ऑब्जर्वेशन रखना है ब्रेथ का. आप कैसे किसी से बात कर रहे हो, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्वर्सेशन, आर यू इजिली एजिटेटेड, कोई कुछ भी कहता है तो ये सब पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है. आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हो तो आप रिस्पॉन्ड कर देते हो, सॉरी रिएक्ट कर देते हो, राइट, या और आप पोस्चर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, कोलैप्स हो जाते हो. तो मैं यही कहती हूँ स्टूडेंट्स को, सिर्फ 1 घंटा जो हो रहा है ना, वो एक्टिव प्रैक्टिस है, लेकिन प्रैक्टिस इज थ्रू आउट द डे. थ्रू आउट द डे आपको किसी ने कुछ भी कहा, आपने किस तरह से जवाब दिया. आर यू मेंटेनिंग द हाइजीन ऑफ योर थॉट्स? That is thought hygiene, that is an interesting term. What does it mean? What does thought hygiene mean? So niyam, the second limb of yoga niyam में हम बात करते हैं शौच की, which is cleanliness. Okay, ठीक है. okay, अब शौच मुझे लगता है सिर्फ शारीरिक नहीं है ना. okay, है ना. ठीक है. मेंटल क्लीनलीनेस भी तो होती है कि what kind of, कभी आप बैठे हो अपने थॉट्स के साथ, what kind of thoughts you are having. And मैं सच बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, when I started observing, because the practice is observing ना, filtration तो अपने आप होता है. When I started sitting with the observation of my thoughts, शुरुआत में तो मैं डर गई कि मैं सोच क्या रही हूँ, दीपा, this is too much. But then slowly and gradually, तो जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिस है, वो फिल्ट्रेशन अपने आप होगा, बट आप ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो ना. तो थॉट्स का भी क्लीनलीनेस होता है, लेकिन वो ऑब्जर्व करने से होता है, बट यू आर नॉट सिटिंग विद योरसेल्फ. संतोष, कंटेंटमेंट इज द प्रैक्टिस. ऑब्जर्वेशन करोगे कि भाई मैं कितना क्या लेके बैठा हूँ और कितना मेरा अटैचमेंट है, कंटेंटमेंट तो अपने आप हो जाएगा. ठीक है. तो प्रैक्टिस सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा कमरे में कर लोगे और हो जाएगा. प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे लेके आनी है आपको ना. ठीक है. और थ्रू आउट द डे वो ऑब्जर्वेशन से ही आएगी. तो जिस मोमेंट आपका ध्यान अपने आप से हटेगा, उस मोमेंट में आपसे एक्सीडेंट्स होंगे, गलतियां होंगी. ओके, अंडरस्टूड. तो नहीं, आप इस साइड बनाओ ना. 1 2 3 हो गए, 4 5. हाँ, गिर जाएगा. लग रहा है यार. नहीं होएगा. ठीक है, हो जाएगा. हाँ, बताओ. थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऊपर एक कार्ड आएगा. नहीं, ओ ऐसे करते हैं. ये 3 हो गए ना, तो 4 5 6 7 ऐसे करते हैं. फिर अपन अलग अलग नहीं करके एक लाइन में चलते हैं. तो अब आप बनाओ, फिर आपके बाद मैं बनाती हूँ.
ठीक है। और या फिर हम ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ, We can तुम do नीचे that बनाओ, also. ये ऊपर वाला चलो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब अगर 1 घंटा हम्म काम करते हो, मतलब हम्म 1 घंटा आपने आसन की प्रैक्टिस करी ना, हम्म उसमें से आप कितनी ही देर प्रेजेंट रहते हो, है ना? कितनी देर ऐसा होता है कि आप 100% इन्वॉल्व हो प्रैक्टिस हम्म में? कितनी देर होता है कि हाँ, मतलब आई कैन से दैट आई वाज 100% डूइंग दिस प्रैक्टिस। 100% का मतलब क्या है? I was doing the practice, I was present in feeling the it in moment, I my was feeling it, I was breathing into the practice, I yeah was observing my full body, है ना? yeah कितनी बार ऐसा होता है? मतलब मुझे लगता है कुछ 10 मिनट का टाइम भी नहीं होता बहुत होगा, कम होता होगा। बहुत कम। yeah तो जब हम 1 घंटा पर्पसफुली आके मैट पे कर रहे हैं कि हाँ, मैं तो योगा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तब भी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि हम उसको कैसे लेके आएंगे? अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी है कि you have to be in the field also the whole time, otherwise ना it will go away. तो जैसे मेरा एक्चुअली पर्पस ये है क्वेश्चन पूछने का कि हमें अक्सर समझ नहीं आ पाता है कि हम कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो जो नॉलेज है दैट इज वेरी अनफिल्टर्ड. यू डोंट नो व्हाट टू कंज्यूम, you don't know what to consume, what not to consume, you don't really understand. So my question to you is, how do you figure out what to read and what not to read? Are there any specific books जो आप suggest कर सकते हो? Yeah, there are so many books. अगर आपको आसन के बारे में पढ़ना है ना, अगर कि what asanas are good for you, तो start with आसन प्राणायाम, मुद्रा बंधा और BKS Iyengar का Light on Yoga. Okay. Yeah. I remember when I walked into your studio for the first time, there were a lot of books over there. Yeah. I love reading. Yeah? Yeah. तो कौन-कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो कि आप बोलते हो कि हाँ? And I think you know मतलब जो आप बुक्स के बारे में बोल रहे हो ना, स्वाध्याय is one of the practice self study. Okay. Like you need to keep yourself updating. Okay. Regarding the practice as well, नहीं तो वो practice का जो charm है ना, वो धीरे-धीरे lose हो जाता है. Okay. So you are rightly saying this कि कौन सी book पढ़नी चाहिए आपको ना. तो एक तो आसन के ऊपर अगर आपको जानना है, डिटेल्स जाननी है, तो you can go refer these two books. And if you want to read Patanjali Yoga Sutra, there are so many commentaries on Yoga Sutra. Yeah. And the best one I would say, मतलब मुझे पतंजलि योग सूत्र के बारे में ऐसा लगता है कि आप बेसिक से स्टार्ट करो. तो विवेकानंद जी की जो बुक है राजयोग में, आप उसको पढ़िए. राजयोग. What is राजयोग? राजयोग is Patanjali's योग सूत्र. It is the same thing. Yoga of royalty, the royal path कहते हैं इसको. Yeah. Okay. Okay. और अगर आपको टाइप्स ऑफ योगा जानना है कि कितने टाइप्स हैं प्रैक्टिस के, तो टाइप्स ऑफ द प्रैक्टिस में बताया गया है कि कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, ज्ञान योग. तो इट जस्ट व्हाट इंटरेस्ट यू द मोस्ट. रीड दैट. और पतंजलि योग सूत्र जो है विच इज योगा फिलॉसफी, तो आप पढ़ सकते हो विवेकानंद जी की बुक. Okay. So I think I do have one Swami Vivekanand's book, which is I think कौन चार योग है उसमें शायद, है ना? तो 4 chapters or 4 parts of yoga. Yeah, 4 parts of yoga, right. Yeah. So I do have that book. I think that is the book from Bihar School of Yoga. Are you sure? Bihar? We need to practice detachment as well. It's okay. Yeah, it's okay. We can do it again. Yeah. Life is all about building from the beginning. Yeah. Yeah. So जैसे कि अपन बात करते हैं मेडिटेशन की, तो how has meditation affected you personally? आप बताओ आपकी क्या स्टोरी रही है मेडिटेशन के साथ, कैसे शुरुआत की थी, शुरुआत में कैसा लगता था जब नए नए एक्सपीरियंसेस आना शुरू हुए थे, क्या फील करते थे, अब किस लेवल पे आ गए हो, how is it the same for everybody, is it different for everybody, how does it work? I think journeys पे depend करता है ना, what kind of journey. But initially I think सबके साथ मुश्किल होता है. I am equally human as everybody. तो शुरुआत में मुझसे भी नहीं बैठा जाता था, मेरे साथ भी बड़ा दिक्कत होता था. कैसे शुरू करते थे, क्या what was your routine जब आपने मेडिटेशन नहीं शुरू किया? जब मतलब see we in yoga we say कि आपकी जितनी एज है ना, मिनिमम उतने मिनट का तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए. Oh really? Yeah. Okay. So if you are 30, then you need to practice meditation at least for 30 minutes a day. Okay. है ना, उतना तो करना है. ठीक है. So I started like that only. I started my yoga journey when I was 23. Okay. ऐसे मैं बचपन से practice करती आ रही हूँ. But legit मैंने as a teacher ना. Okay. 24 की थी मैं. तो you became a yoga teacher at 24. Wow, और मुझे ऐसा लगता है मैं लेट हुई. और जल्दी start कर देती. Yeah. फिर? तो yeah. तो
क्या बता रही थी मैं? आप बता रहे थे मेडिटेशन कैसे आपने शुरुआत हाँ, करी? तो आई वाज 24, तो 24 मिनट से स्टार्ट किया था ना, बट शुरुआत में बैठा नहीं आता था और ऐसा लगता था मतलब पूरी दुनिया के जो सोच विचार है वो इसी समय ही आने होते हैं क्या? हाँ, यही टाइम है क्या मेडिटेशन का? मतलब द मोमेंट आई थिंक ऐसा लगता है कि अच्छा वहाँ नल खुला होगा, वो भी मुझे उसी टाइम ही ओह याद आया। यार, राइट, Initially this happens, yeah, but slowly and gradually you start having more power और you know more regulation over your thought और वो खुद से आप नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि आज तो मैं अपने माइंड को कंट्रोल करके ही हो ही नहीं रहूंगी। सकता। वो आपने नहीं हो जिस दिन सकता। सोचा है ना, हाँ, उसी you'll end दिन up having more thoughts। पकोड़े बन रहे हैं, किचन में हाँ, खुशबू आ रही है, हाँ, हाँ, जल्दी करो हाँ। यार, मतलब उस दिन खाएंगे तो जाके। आपको ऐसे थॉट्स आएंगे जो थॉट्स आपको कभी नहीं आते ना, हाँ, उस मोमेंट में आपको वो थॉट्स ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है। It started like that with me too, but then I think the consistency, you know, and with the guidance of teachers for sure, I Yeah. would say, because that is the most important thing. But my commitment as well, क्योंकि मुझे करना था Okay. meditation. तो practice करते 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 it became very much comfortable. तो पहले ये समझ लो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी मैं। तो शुरुआत में जो एक्सपीरियंस था, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था, बट व्हाट वुड यू फील जब आपने कर लिया मेडिटेट, आपने 15 मिनट आप बैठ गए, तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे होते थे? शुरुआत में क्या होता था और फिर Agitation. ओवर द इयर्स? अच्छा, Agitation, yeah, you मतलब you feel agitated, you are like अरे यार मेरे legs numbs हो रहे हैं और मेरे मतलब posture collapse हो रहा है ओके, और ऐसे 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 आँख आधी आधी आँख खोल के देखना कि ये क्या कर रहा है, इसका हो रहा है क्या, ओके, क्योंकि पता नहीं है ना मेडिटेशन है क्या। हाँ, मेडिटेशन प्रोसेस है, हाँ, मतलब प्रोसेस नहीं है, मतलब एक दिन हो जाएगा। मतलब जो गैप्स होते हैं ना इन बिटवीन द थॉट्स, जो गैप्स आते हैं वो इंक्रीज करना, राइट, है ना? तो वो धारणा से होता है। धारणा क्या? कंसंट्रेशन। अब आप अपने अपने आप को आपने बोल दिया कि ऑब्जर्व योर ब्रेथ, काउंट 21 ब्रेथ्स, दैट इज धारणा। या, वो काउंट करते करते लेकिन एकदम से तो ध्यान हटेगा, ऐसा लगेगा अरे 19 पे आते कहाँ पे थी मैं, है ना? that happens, which count I was doing, but then slowly and gradually you do the count to the full, yeah, थॉट्स नहीं आए। जब कर लो, मुझे लगता है जब चैंटिंग से अच्छा तो कोई और काउंट ही नहीं है। सीरियसली? या काउंटिंग करो, मंत्र चैंटिंग करो, बट मंत्र चैंटिंग में भी आजकल तो माला होती है या फिर वो चैंट काउंटर होता है, तो उससे यू जस्ट कीप चैंटिंग एंड यू कीप, सो इज दैट बेटर और शुड यू ट्राई टू रिमेंबर इन योर हेड कि कितने काउंट्स हो गए? हाउ डज इट वर्क? अपने आप को ना डिस्ट्रैक्शन से हटाने के लिए आपको अपने आप को शुरुआत में तो एक डिस्ट्रैक्शन देना पड़ेगा। तो डिस्ट्रैक्शन कौन सा दोगे आप अपने आप को? आई वुड सजेस्ट डिस्ट्रैक्शन के नाम पे आप दे दो अपने आप को ब्रेथ। ठीक है, कि चलो मैं अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करती हूँ ना, ठीक है, जो भी दिमाग में चल रहा है, तो हटाना है ना उसको, हटाना है, ध्यान तो एक तरफ से लगा हुआ है, ध्यान हटाना है, राइट। तो डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए आप अपना ब्रेथ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करो, 21 रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करो, या फिर अपन ओम चैंटिंग कर सकते हैं, मेंटल ओम चैंटिंग। I actually wanted to ask you this. What is the difference between, there are lots of different types of Om chanting also, like in your head, मतलब I don't know the name. हाँ, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनके इफेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, आप थोड़ा और बताओ। See, effects I think more or less हम लाउड चाउंट करते हैं ना, 3 तरह के चांट होते हैं, एक तो लाउड, एक अपना लिपसिंग और एक मनसिक, मन के अंदर ना। ठीक है, ठीक है। तो आप जब लाउड चांटिंग करते हो ना, तो समवेयर यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ सो मच कि आपको थॉट्स वगैरह कुछ आएंगे नहीं, क्योंकि आप तेज तेज कर रहे हो, आपको याद रखना है कि अच्छा अभी, एंड देन यू चांट, एंड देन अगेन यू इनहेल, देन यू चांट। लेकिन जब ये मेंटली जाता है ना धीरे धीरे, जब ये आप मेंटली करने लगते हो, तो मुद्दा यही है कि इसको अपन को ऑटोमेटिक बनाना है। ठीक है, इट नीड्स टू बिकम ऑटोमेटिक। तो जब जैसे जैसे धीरे धीरे ये आपके मेंटल चैंटिंग स्टार्ट होती है, जैसे हम शुरुआत में क्या करते हैं, बोलते हैं 10 आप लाउड कर लो, 10 लाउड करो, ठीक है, 11 लाउड कर लो, 11 अपने लिपसिंग कर लो और 11 ही अपन मन में करेंगे, मन में। और वही सेम है, आपको सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए मन में ओम बोलना है, ठीक है, ठीक है। मेंटल चैंटिंग इज समथिंग दैट वी नीड टू हैव ऑल द टाइम हैपनिंग। नहीं करेंगे ना अगर, तो धीरे 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 क्या होगा, आपके फिर से आपका माइंड टेक ओवर करने लगेगा, द मूवमेंट इन योर माइंड विल टेक ओवर। अब ऐसा नहीं है हमको क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है, हमको लॉजिकल थिंकिंग भी करनी है, बिकॉज वी आर लीडिंग द लाइफ, लेकिन द मोमेंट यू आर फ्री स्टार्ट डूइंग दैट। तो मैं इस पे अपने टीचर का एग्जांपल बताऊंगी। जब हम मैं जब योगा का केवल धाम गई थी, इट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ योगा प्रैक्टिस, तो वहां पे आई यूज्ड टू सी माय टीचर, he used to teach us anatomy and physiology, amazing teacher,
just before the class, you know, he would guide us Okay. into the, no, just before the class, I would see him chanting Om Okay. in his, you know, staff room. Okay. तो मैं काफी दिन तक देखा, मैंने observe किया, and then I went, sir, are you nervous क्या? Before the class you're chanting Om? And then he started laughing. Okay. And then you know what he said? He said, नहीं, मुझे जब टाइम मिलता है ना, मैं ओम चैंटिंग करता हूँ. Okay. तो मुझे लगा अभी आपकी क्लास खत्म हुई है आप लोगों की, आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, आपकी क्लास लेट खत्म. तो मेरे पास जब भी टाइम होता है ना, I do the chanting. Okay. It's not because I am nervous, it's just I don't ever want to be nervous. Oh, wow, that's such a nice way to look at it. Yeah. Yeah. So I have also felt this कि जब भी मैं ओम चैंटिंग करती हूँ पर्सनली, तो बहुत ही एक काम सी फीलिंग होती है और अंदर ऐसा लगता है, अगर आपने सुना हो तो कि साउंड कैन rearrange your molecules. Yeah. Yeah. So Sound is a vibration. Na? yeah. So it can rearrange your molecules, and I've heard that because the frequency of Om is very pure for our body. It's supposed to be very healing. It has a healing form. It's a universal sound. Yeah. So it is going to have the healing. But एक चीज जो मुझे लगता है कि ओम चैंटिंग के बारे में बहुत ज्यादा हो सकता है, I might be wrong, but जो मुझे सबसे पसंद है, I would put it this way, कि ओम जो चैंटिंग है ना, it's like प्राणायाम. Okay. ठीक है? ठीक है. तो आप जब ओम का अभ्यास करते हो, I think we both have to do it together. Yes. तभी काम करेगा. Yes. तो घेरन संहिता में, which is one of the text of yoga, which speaks about the practice of yoga. Yeah. तो वो हठ योग प्रदीपिका में, मतलब सॉरी, घेरन संहिता में, they call it प्रणव प्राणायाम. ओम is known as प्राणायाम. ठीक है? अब ओम को वो प्राणायाम बोल रहे हैं, which I understood later, कि in general how many breaths we take in a minute. 13 से 14? I don't know. That's what I think modern science says. 15 से 16. You are a healthy person if you are taking 15 to 16 or 14 to 15 breaths in a minute. In a minute, okay. ठीक है? अब आप जब ओम चैंट कर रहे हो, so you inhale, you are exhaling and chanting ओम. इधर देखो गिर जाएगा वापस. Okay, inhale. मतलब लंबा एक्सटेंड करना चाहिए जितना हो सके. Okay. And it shouldn't be loud. यहाँ जाके रुका है. So you really feel it in the base. Yeah, you do. तो जब तक वो contraction feel हो रहा था ना, तब तक I wasn't able to talk. Yeah. तो ओम चैंटिंग आपने इनहेल किया, एक्सेल के साथ आपने चैंट किया, उसके बाद आपको पॉज है, उसके बाद पॉज लोगे आप ना, एकदम से इनहेल नहीं करोगे. यू टेक अ पॉज एंड देन यू इनहेल. तो 1 मिनट में आपको क्या लगता है आप कितने ओम चैंट करते हो? I think 4 और 3, 4. क्या जिनका ब्रेथ रेगुलेशन अच्छा है ना, 3. इनिशियल स्टेज में 4 to 5, ये स्ट्रेट अवे आपकी ब्रेथ को रिड्यूस कर रहा है. राइट. एंड स्ट्रेट अवे ब्रेथ रेगुलेशन से क्या होता है, आपका माइंड क्लियर होने लगता है. हाँ, रेगुलेट होने जाता है ना. When you create space in your breath, you create space between your thoughts. क्योंकि अगर रैपिड थॉट्स है तो ब्रेथ कैसा रहता है? रैपिड. मतलब अगर अपन देखें ना, जो मैंने सीखा है कि डिसिप्लिन नहीं है, तो हमको अपनी हर चीज को डिसिप्लिन में लाना है. तो देखा जाए तो जब मेरा मन कर रहा है मैं उठूंगा, मेरी मर्जी. I'm old enough, I can decide. मेरी बॉडी है, तुमको क्या करना है. वन थिंग. सेकंड, मेरी मर्जी, मुझे ये अच्छा लगता है, आई एंजॉय ईटिंग दिस, आई एम गोइंग टू ईट दिस. मेरी मर्जी, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है. कैन यू बिलीव हम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा फोन के साथ एक जगह पे बैठ सकते हैं, पर जब बात मेडिटेशन की आएगी ना, हमसे 5 मिनट नहीं बैठा जाएगा. You can't sit. मतलब थॉट से आपको लगता है उठ जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं. अरे ये काम भी तो बचा है करना, ये तो मैंने किया ही नहीं. सब कुछ उसी समय ही आएगा. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज बीइंग मिस्ड इन आवर लाइफ. दैट इज अस. तो एक चीज अपन अब जो बात कर रहे थे एक्सपीरियंसेस की, तो शुरुआत में आप एजिटेटेड रहते हो, एंड देन व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? व्हाट इज द जर्नी लाइक?
सी एजिटेशन होता है क्योंकि जब आप हम्म। प्रैक्टिस शुरू करते हो ना तो सब कुछ हम्म। सरफेस पे आता है, ठीक है। सब कुछ आपके जितने भी इमोशंस हैं, हम्म। जितने भी ट्रॉमास वगैरह रहे होंगे वो सब क्या होगा, सरफेस पे आएगा। ठीक है। फिर धीरे 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 जस्ट बिकॉज नाउ यू आर हैविंग अ मोमेंट विद दैट, क्योंकि हम्म। शायद कभी टाइम नहीं मिला, हम्म। हो सकता है याद भी ना आए हम्म। कि क्या हुआ था, मैं क्यों हूँ ऐसी, मेरे हम्म। क्यों ऐसे रिएक्शंस होते हैं, कोई मुझे जब हम्म। पर्टिकुलर चीज बोल देता है तो याद भी नहीं आता। लेकिन हम्म। धीरे 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 what started happening, I हम्म। started making peace with that. ओके। Yeah, I started letting go. Being okay Being with okay, with yeah, things falling apart. yeah, Yeah. yeah, Yeah. yeah. And I think from there things started changing. Okay. क्योंकि आप होल्ड ऑन करोगे ना तो हम्म। आपका हाथ ही थकेगा, है हम्म। ना? कितनी देर तक किसी चीज को पकड़ के रख सकते हो? बहुत अच्छा कोट सुना था मैंने कि अगर एक हल्का सा फूल भी आप हाथ में उठा के रखोगे ना, थोड़ी देर में आपके कंधे में दर्द होने लग दिक्कत जाएगा, हो हाथ में जाएगी, दर्द हाँ होने लग दिक्कत हो जाएगा। जाएगी। And we pick up so much weight of the world. हम्म, So meditation helps us let go of तो that. मैं शवासन के लिए यही बोलती हूँ, शवासन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मत मेरा तो जाओ। फेवरेट है। हाँ, वो सबका ही फेवरेट है, लेकिन उसके पीछे जो मतलब है ना वो बहुत बढ़िया है। हाँ। थोड़ी देर के लिए इट्स काइंड ऑफ मिनी डेथ, या। मर जाओ थोड़ी देर हाँ। के लिए, मतलब हाँ। with the titles, तभी तो with the शवासन। achievements, हाँ जी। with you know what you have done in the life, Forget about it. with what roles you are playing in the life, Yeah. छोड़ दो कुछ देर के लिए, बस उसको वहीं उस तरह ही छोड़ दो। That is shavasana. Yeah. Had people you know who would come and ask me, मैम मेडिटेशन में मैं हिल जाऊंगा क्या? हाँ। मतलब will I move? Okay. Will my body shake? Yeah. Will I cry in the meditation? हाँ। तो मुझे लगता है कि आप पर्पस लेके आ रहे हो, मतलब आप एक तरह से गोल लेके आ रहे हो। मैं कैसे बता सकती हूँ ना what you are going to feel in your meditation? Yeah. But just because we are showing it like that on social media, Yeah. कि ऐसा Right. होता है मेडिटेशन में, तो सब यही मानते हैं तो कि सब कुछ आते कुछ ही तो है भाई। जस्ट इमेजिन हाँ। इस इंटेंशन के साथ आते हैं। It's going to be tough. It's not a fancy practice. You will have to come sit with yourself. जो जितना uncomfortable लगता है उसको manage bear करना पड़ेगा। उसके बाद ही धीरे धीरे प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्म होएगी, चेंज होएगी। बट और कोई तरीका नहीं है प्रैक्टिस। Right. Yes, you are going to have insights, you are going to have experiences, but again these are just experiences. आपको उसको लेके नहीं बैठना है कि वाओ such an amazing feeling, आज मेरा मेडिटेशन अच्छा नहीं था। No, you have to leave it there only. Yeah. Because next time अगर आप सेम फीलिंग के साथ आओगे ना कि अरे यार आज मेरा अच्छा ऐसा ही होएगा, कल मेरा अच्छा था, तो फिर आपने अपने आप को रोक लिया इवॉल्व होने से। I remember during our class, I had an experience, and I really wanted to. Sorry, this time I did it. मैं कोशिश कर रही थी, बड़ा याद से बना रही है कौन। कर लेंगे अभी तो टाइम है। ठीक है। गोल रखते हैं कि एटलीस्ट एक देखो गोल। क्यों ऐसा होता है? क्यों हर चीज में गोल आ जाता है? क्यों हम बस बैठ के चिल नहीं कर सकते? क्यों हमें वो टॉप वाला कार्ड लगाना है? बस गिर रहे तो भी अच्छा ही लग रहा है, मजा आ रहा है, ऊपर जाके भी ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा। एग्जैक्टली। तो ये प्रॉब्लम तो है ना हमारे साथ, गोल ओरिएंटेड तो हम हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था ना, कि पहले की जनरेशन में ऐसा नहीं होता था। पहले बैठे थे तो आज लगता है बैठे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, डू समथिंग, बट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वी आर एक्चुअली लिविंग आवर लाइव्स, यू नो, व्हाइल creating, we are creating everything, yeah. और मेरे को लगता है वो बहुत जरूरी भी है ना जीना। राइट। तो हमें मेडिटेशन उन एक्सपीरियंसेस के लिए नहीं करना है, तो हमें मेडिटेशन किस लिए करना है? सिर्फ अपने आप की लाइफ को बेटर इम्प्रूव करने के लिए नहीं। सी मेडिटेशन करना है अपन को। क्या होता है जब फोन की बैटरी आउट हो जाती है? कुछ और घर वालों को नोटिस करते हैं कि हाँ अच्छे लोग हैं, और चार्जर लगाते हो ना। हाँ चार्जर लगाते हो, राइट, है ना। तो मेडिटेशन इज लाइक दैट, यू हैव टू जस्ट डिस्कनेक्ट विद एवरीथिंग, ताकि आप कुछ मोमेंट्स का कर पाओ सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो ताकि आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। सबको चार्जिंग चाहिए ना, सबको चार्जिंग यू जस्ट कांट कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। अब उसके बाद जो हम हायर एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, वो तो उसके बाय प्रोडक्ट है, नेक्स्ट स्टेप है। वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस, बताओ। हाँ तो क्या है ये हायर एक्सपीरियंसेस? एंड मतलब मैं ये नहीं बोल रही आप अपना बताओ, बट यूजुअली लोग क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं?
नहीं, मैं अपना ऐसे शेयर कर सकती हूँ ओके बिकॉज तुमने बहुत बार बोल दिया है मुझे। हाँ मैं एक बार मैं जब केवल धाम में थी, आई रिमेम्बर वी हैड दिस क्रिया योगा वीक ना, ओके तो उसमें हमका आसन प्रैक्टिस का हमारा नहीं रहता था ज्यादा। अच्छा सो ड्यूरिंग प्योर मेडिटेशन क्रिया योगा में हमको गायत्री मंत्र का चांट रहता था। ओके या एंड उसमें हमारा डाइट भी काफी मॉनिटर रहता था, बहुत हाँ। हल्का खाना खाते थे हम। गायत्री मंत्र, प्राणायाम, हवन रहता था, हवन करते थे, और उसमें हम ओम चैंटिंग, ये 3 चीजें रहती थी। ठीक है प्राणायाम में अनुलोम विलोम। ठीक है हाँ, and then we used to be like, you know, in my batch there were 70 students, 70. 70 Yeah, तो काफी लोग थे हम लोग ना उस टाइम पे। ओके तो एनर्जेटिकली भी बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि इतने सारे लोगों से कलेक्टिव हाँ एनर्जी एनर्जी जाती थी हाँ, तो ऐसा था कि अब जॉब मुझे ये वाली करनी नहीं है, छोड़ चुकी थी, ऐसा था। तो ओके नहीं आ रही, नहीं तो मेरी बात भूल जा रही हूँ। हाँ नहीं नहीं आप बोलो हाँ। मैं बनाती हूँ हाँ। फिर तो क्या हुआ आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days मैं मतलब there was this thing that happened, unstoppable tears, Yeah. and I wasn't sad. मेरे रुक ही नहीं रहे थे आंसू ना, मुझे Okay. लगा कि and this is the very first experience I'm talking about. Yeah. Unstoppable. अब फिर से मैं इस बारे में बात कर रही हूँ तो I don't want this message, you know, to go कि आप सबको भी यही है कि मुझे रोना है meditation में। ऐसा नहीं है, you know, it happened with me. It happened very naturally, very naturally. And then I went to my teacher, and then I told him, sir, I don't know why, but मुझे इतना सब ऐसा, मैं जिस भी चीज को देख रही हूँ मुझे रोना आ रहा है, किसी को भी देख रही हूँ। So my teacher, he, you know, started laughing and he said, अभी तो ये just शुरुआत है। Okay. After a while, you'll touch a tree, you will cry because you will be so, मतलब you'll start feeling everything, ना? Okay. Basically, feeling of oneness with everything around you. Yes, कि you that's what and exactly what he said. yeah. That you'll start having the feeling of oneness, that I am relatable, we are one. तो वो उतना लेवल तक भी होता है। आप क्रिया योगा की बात कर रहे हो तो आई रेड द बुक जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, और उस बुक ने काफी सारे लोगों की लाइफ्स को चेंज किया है। तो उस बुक में मैंने एक इंस्टेंस पढ़ा था जहाँ पे वो शेयर करते हैं कि योगानंदा की बात कर रही हूँ, आई थिंक वो शेयर करते हैं कि फर्स्ट टाइम उनको एक्सपीरियंस हुआ एट वन टाइम he could see, like for example this is a wall, ठीक है, तो he could see कि wall के पीछे गाय अगर जा रही है तो उनको वो गाय दिखाई दे रही है, अगर वो यहाँ बैठे हैं तो उनको ये दिख रहा है कि 2 शहर छोड़ के या 2 गली छोड़ के या कहीं और किसी सेम टाइम पे he can see everything. It's overwhelming because, and he couldn't feel, he just felt ki what is this, you know, he felt this, but then he understood because he'd been doing it for such a long time, so he felt this experience. He was seeing everything at the same time. So just because, so remember when we were talking about the potential of our mind, this is the potential they talk about. हम ना 1/10 भी नहीं, हम 1% भी नहीं यूज कर रहे हैं, और पोटेंशियल इतना ज्यादा है। सेम स्टोरी है गौतम बुद्ध की भी। अच्छा, क्या स्टोरी है? मतलब स्टोरी ऐसे है कि गौतम बुद्ध ना, मतलब स्टोरी नहीं, ऐसा है, ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इतना वाइड था, इफ ही इज समवेयर ना, पीपल इन विलेजेस अराउंड, यू नो, जिस विलेज में वो है, आसपास के विलेजेस को भी डिफरेंस फील होता था। ओके, ही हैड सच ऑरा। मतलब आप प्रैक्टिस करके अपने आप, अपनी साधना करके इतना इम्पैक्टफुल बन सकते हो, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि इट्स नॉट जस्ट, यू नो, पीपल इन फ्रंट ऑफ मी विल फील द डिफरेंस। ऐसा होता नहीं है, कभी कभी हम किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज सो फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। तो गौतम बुद्ध के बारे में ऐसी बात बोली जाती है कि उनका किलोमीटर्स के हिसाब से था ऑरा। वाओ। सो जो ऑरा की आपने बात करी, तो एक एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू, I've heard people often experience this, that there is a something huge around them, and they feel very small. So is that the aura they're experiencing, or is it just an experience? What is it? सबका डिफरेंट होता है ना एक्सपीरियंस तो, बट दिस इज ट्रू। वो ऑरा फील होने लग जाती है बेसिकली आपको, खुद की ऑरा। No, you become energy sensitive. You start feeling the energy. Right.
कितने हो गए? 5. 2 more. Or should we just हाँ. 1 more? Let's और, just do हाँ. 1 more. चलो okay. फिर ऊपर लगाते हैं. हाँ. Oh God, I'm so scared. Okay. Okay, but ठीक है, ये जहाँ है वहाँ कंप्लीट है. हाँ. ठीक है. हाँ. और ये आगे जाएगा तो भी कंप्लीट होगा. No, we have to practice detachment also, ना? Yeah. कि गिर भी गया तो गिर गया यार, क्या हो गया? मगर अब आज तो ये हो गया कि सॉरी. it's okay. होता है. अब तो वैसे भी आज मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है हम 5 वाले ही बना लेते हैं. हाँ. वही बहुत है. तुम भी बनाओ, मैं तो ऊपर वाला ही बनाऊंगी. चलो ठीक है, डन है. हाँ. So coming back to meditation, ये तो हुई मेडिटेशन की बात. अब मुझे ये भी लगता है कि जैसे योगा करते हैं हम लोग, तो कई बार क्या होता है कि we don't really understand that you should be able to feel it in the respective, जहाँ पे भी आप जिस भी मसल पे आप वर्क करने की कोशिश करो, हमें पता ही नहीं होता कि वो फीलिंग क्या होती है कि मसल पे आना चाहिए. जैसे आपने बोला you have to stand a certain way, you have to walk a certain way, you don't feel all of that. Yeah, because you're not aware, because you're not observing. Yeah. Because you're not practicing yoga. Yeah. So my teacher, his teacher asked him that he went and he was like, sir, what is yoga? Is it just 1 hour on the mat? So his teacher goes and replies, नहीं, पहले तो तुम जाओ योगा टी बनाओ मेरे लिए. Go make a yoga tea. Tea. मतलब योगा चाय. Yoga chai. Okay. So he goes in the kitchen and he's looking for the ingredients कि अरे भाई कोई होगी योगा चाय. होगी योगा नाम की चाय. हाँ. But then he makes the normal tea because he couldn't find the ingredients. And he comes out, I don't know, master, what yoga tea you are talking about. But मैंने normal chai बना दिया आपके लिए ना. So the master goes, be 100% present. That is yoga tea. जब आप चाय बना रहे हो ना, तब आप सिर्फ और सिर्फ चाय बनाओ. जब आप पूजा कर रहे हो ना, आप सिर्फ और सिर्फ पूजा करो. So being in the moment, 100% is yoga अभ्यास. तो एक काम करते हैं, 5 मिनट के लिए let's be in the moment and let's build this thing up. What do you say? Do you think that will change things? Let's see. तो ऐसा करते हैं बीच से, then I'll take it here and you take it there. I think that will work. Okay, let's aim for 5 now. Yeah. Okay, let's do this. No. बचा लिया आपने अपना. And I love how the background music is also supporting our conversation. Yeah. दूर रखो, पास में रखो. So for example, मैंने आपको बताया कि experiences होते हैं ऐसे experience. तो मुझे वो experience कब होगा? I know you are saying कि don't rush and don't think about it. वो अपने आप चीजें होंगी. But still, it's a person can be curious. आप बताओ. So how long you've been practicing? Honestly, meditation की बात करूँ तो बहुत on and off चलती है. रोज नहीं होती है. कभी टाइम मिल गया तो कर लिया. वैसा वाला सीन है. तो यही है. और इन जनरल जो अभ्यास है ना, वो सिर्फ मेडिटेशन का नाम नहीं है. Okay. There is, there are so many practices. There is more to it. A lot more to it than we just think. Okay. तो सिर्फ मेडिटेशन नहीं, इन जनरल हम जब योग अभ्यास की बात करते हैं, तो आप कितने टाइम से कर रहे हो? जनरली अगर बोलें तो ओवरऑल प्रैक्टिस आप कितने टाइम से कर रहे हो? 4-5 years I think. And how regular are you with this? I can get regular, but then I go a bit off and then I get back. But then when I'm regular, I'm regular. It's like that. तो अभी स्टार्टिंग ही हुआ है प्रैक्टिस. Okay. According to text, the practice has not started yet. अच्छा. हाँ. According to the text, the practice only starts once you have committed to the practice. Okay. Commitment means like कि अब ये it's like brushing your teeth. रोज करना है. करना ही है. छोड़ ही नहीं सकते. चाहे कुछ भी हो. हाँ. मतलब मन की ना 5 stages of mind बताई गई है. Yeah. क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध. So they say the first stage of mind is क्षिप्त, distracted. ना बिल्कुल ऐसा है कि I'm enjoying the external world. मुझे मजा आ रहा है. And I'm not even bothered about कि there's something like this that exists and I want to do it. ठीक है. Mood, dull होता है, dull state of mind. बिल्कुल ना, तमस predominant होता है इसमें. The third one is विक्षिप्त.
Okay. विकसित is something is that state of mind जहाँ पे आप जो भी कर रहे हो उसमें मजा नहीं आ रहा होता है. Then a friend comes. Yeah. Why don't you try yoga? Yeah. Why don't you go to a yoga class and see how it helps? वहां से स्टार्ट होता है आपका. नहीं, वहां से भी नहीं, मतलब वहां से भी स्टार्ट नहीं होता. नहीं, विक्षिप्त से भी नहीं. Okay. Because then you are like, आज चली जाती हूँ, नहीं जाती हूँ, दो रात को लेट हो गया था, लेट हो गया था, अरे लंच लेट हो गया, डिनर लेट हो गया, समझ रहे हो? all those things, all those factors. बच्चा सोया नहीं. और ये तो अभी मेरी एक्सक्यूज बता दी. बच्चा सोया नहीं, right? But that's a genuine one. लेकिन यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होता है, because this is like pendulum type of stage. Okay. You are coming to the class, you're not coming to the class. It is stable नहीं हुए हुआ. Then comes the fourth stage of mind, which is एकाग्र, concentrated state of mind. अब वहाँ पे आपको खुद को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You know it's very much part of your life. तो आप करते हो practice. तो you yourself are not ready to give yourself any excuse because you are committed. करना है तो करना है. हाँ, मतलब ये अब कोई वो ही नहीं है. This is like no longer an excuse. हाँ, right. Yeah, I'm going to do the practice. Yeah, that's it. Yeah. So ये इसीलिए शायद लोग बोलते हैं कि बचपन से ना चीजों को ढाल देना चाहिए बच्चों में, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं. बच्चों के लिए वो रूटीन बन गया, तो it stays there for life. I think this is योग अभ्यास, योग education is such an important part of education और missing है life से. Like we are such a sophisticated machine. Yeah. सारी machines जो है ना वो सब मैनुअल के साथ आती हैं. How to use them. Yeah. हमारा भी तो कोई मैनुअल होगा. मैनुअल होगा. हाँ. That's such a good point. Yeah. Every single machine, an AC, a TV, a fridge, and a microwave, they all come with a manual. Yeah. Where is our manual? Yeah. Yoga. Yeah. Yoga practice. Yoga शास्त्र. So you're saying कि अगर हम अंदर चले जाएं और हम meditate करें और हम योगा करें या योगा शास्त्र हमारा manual है. Is that what you're saying? Yeah. Yoga philosophy, Patanjali Yoga Sutra is the manual. तो हमको Hatha Pradipika is the manual. How to use this most sophisticated machine, Okay. But this is the most ignored. Yeah. I think हम अपने आप को जितना इग्नोर करते हैं ना, उतना शायद कोई नहीं करता. तो बकवास बातें जब हम बोलते हैं कि we love ourselves. Nobody love themselves. Yeah. No, we have to learn to love ourselves. क्योंकि otherwise love किसी और से हो भी नहीं पाएगा. Okay. तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना sophisticated system है, तो इसको use करना भी बताना चाहिए कि इसको use कैसे करना. सही बात है. But this should be the part of our education system. Yeah. कि भाई use कैसे करोगे इसको, अपने हमारे emotions की training होनी चाहिए ना. सही बात है, होनी तो चाहिए. But वो योग अभ्यास बता रहा है that your emotions should not lead your life. Your willpower, your will center should lead your life. Yeah. हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारी लाइफ को नहीं लीड करे. हमारे तो इमोशंस से चलती हैं सारी चीजें. आज मूड ठीक नहीं है तो आज तेरा भाई ये करेगा. आज मैं आइसक्रीम खाऊंगी. आज मेरा मूड ठीक नहीं है. आज मैं ये करूंगी. आज मैं अपनी बॉडी को और टॉर्चर करूंगी क्योंकि ऑलरेडी टॉर्चर्ड है. वाओ. तो ये इतना इम्पोर्टेंट एजुकेशन है और ये मिसिंग है सिस्टम से. थक गई अब हो गया. अब मैं नहीं कर रही. Okay, level 1 complete. See, now I'm a little more attached to this because humans are not capable of detachment, I feel. We are. We are? Yeah. आप ही बनाओ ये. मुझे लग रहा है आप ही कर सकते हो ये, क्योंकि हम में तो इतना फोकस है नहीं. अब यहाँ पे बनाओ. ये फिसल रहे हैं कार्ड्स. हाँ, बस वो it's because they are new cards. ये देख लो. फिसल रहे हैं. ठीक है, इतना भी बन गया ना. And that is why detachment is important. हर बार ही डिटैचमेंट की बात. डिटैचमेंट सब कुछ है. या तो अपन ऐसा करते हैं, 3 का बनाते हैं और उसके ऊपर बस रख देंगे. बन गया हमारा हाउस ऑफ कार्ड्स. ऐसा. हाँ जी. सो सेल्फ लव की बात कर रहे थे हम. So see, when you are in a relationship, आप frustrated हो जाते हो कि भाई Himanshu, you're not paying attention. And you've taken me for granted. Yeah, right. I need some space. Yeah. आपका body भी exactly आपसे यही demand करता है. ठीक है. Hey, can we have a moment? Yeah. Hey, it's been too long. You haven't visited. But why can't we hear our body telling us that? Body तो signals देती है, signs देती है ना. But
It's just we are not available to listen to the Yeah. science. Yeah. हमको साइंस कब समझ में आते हैं? हमको बड़े बड़े साइंस समझ में आते हैं. एंजाइटी हो गई, Yeah. क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, हाँ. क्योंकि बॉडी को हम पे ट्रस्ट नहीं रहा. Yes. तो बॉडी को ट्रस्ट से ज्यादा बॉडी को लगता है कि अरे छोटे मोटे साइंस में चल नहीं रहा है. I've tried enough. Okay. Now bigger science. Yeah. तो फिर वो लिटरली ये डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स के केस में आते हैं हमारे आगे. Okay. हाँ. तो मुझे ऐसा लगता है मतलब then your body is like I don't like you anymore. Yeah. Yeah. Break up. Yeah. Body is breaking up. Breaking up. You're not a good owner. Change. Replace. And then, wow, that is brutal. I would never want my soul to say that to me. Yeah. 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 Okay, so jokes apart, but your body also, you know, your body wants time with yourself because only when you make yourself available, your body feels heard. Yeah. Your body feels, you know, paid attention to. और जब हम जाते हैं ना, हम ड्रॉप इन करते हैं तो उसे लगता है चल ठीक है, she is available. Yeah. He is available. Yeah, I can count on her. I can count on her. Yeah. और वहां से चीजें बदलना चालू होती है. Okay. But सोल पर्पस तो ये है नहीं. सोल पर्पस क्या है योगा का? सोल पर्पस क्या है? क्या है? सोल पर्पस है टू स्टॉप द फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड. Yeah. योगा चित्तवृत्ति निरोधन. तो जितनी भी हमारी मेंटल फ्लक्चुएशंस हैं इन द नेम ऑफ थॉट्स और जो भी, उसको स्टॉप करना है पर्पस. तो पर्पस जो है ही नहीं, हम उसका कुछ अलग ही फोकस लेके बैठ जाते हैं. बट आई थिंक टू स्टार्ट विद इट्स गुड. Yeah. आओ प्रैक्टिस करो, आसन प्रैक्टिस करो, बिकॉज देन यू आर गेटिंग एंगेज्ड. Yeah. है ना, कुछ देर के लिए ब्रेथ होल्ड गोल है, कुछ गोल है, कुछ कर रहे हैं. हाँ. तो नो डाउट वेट लॉस होगा, वेट Yeah. लूज होगा, वो Yeah. उसमें डाइट का बहुत मेजर रोल है. लेकिन सोल पर्पस तो ये नहीं है, बाय प्रोडक्ट है. बाय प्रोडक्ट है एंजाइटी जाएगी, बाय प्रोडक्ट डिप्रेशन ठीक होगा, बाय प्रोडक्ट है वेट लॉस होएगा, बाय प्रोडक्ट है स्किन अच्छी हो जाएगी, बाय प्रोडक्ट है आप खुश होने लगोगे. बट आई एम सो हंग्री. इतनी भूख लग रही है ना, क्योंकि अपन कितने सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं. यस. And it's been a wild day. Have you enjoyed it so far? Loved it. Yeah. Good experience. There's a huge role in yoga also. I think कि जैसे बोलते हैं कि तामसिक खाना ठीक होता है, राजसिक होता है और साथ अलग अलग टाइप का. So in a situation like this, I mean in a scenario like this, that every day you have to choose what you're eating. What should be an ideal diet? How do you do that? How do you view, or what do you view an a good diet as? So see, as far as diet is concerned, योग में तो मिताहार की बात होती है, बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का इनके हिसाब मतलब योग शास्त्र के हिसाब से जो मतलब है, इसमें हम क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द फूड एंड टाइम, मेंटल एटीट्यूड, ये सब मैटर करता है. तो अगर हम योग अभ्यास की बात कर रहे हैं, उसमें जो डाइट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हाउ मच यू आर ईटिंग मैटर्स. डजंट मैटर आप सात्विक खाना खा रहे हो लेकिन आप ये भर क्वांटिटी में खा रहे हो, अगेन दैट्स गोइंग टू टेक सम मोर टाइम टू डाइजेस्ट. और क्वांटिटी की बात होती है, सॉरी क्वालिटी की बात होती है, तो हम सजेस्ट करते हैं रीजनल खाना है, सीजनल खाना है, पैकेज्ड फूड कम से कम, जो आपके लोकल एरिया में ग्रो हो रहा है खाना, जो आपके रीजनल बॉर्डर्स पे ग्रो होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा वो खाना है, बिकॉज दैट्स गोइंग टू सूट योर बॉडी दी मोस्ट. बिकॉज योर बॉडी, जो आपका बॉडी का विजडम है ना, उसके लिए वो खाना इट्स रिलेटेबल, आपकी बॉडी जानती है उसको. इट्स लाइक देयर इज अ it's easy for your body to understand हाँ ये मेरी जगह से आ रहा है. Because you're born there? Yeah, so your body understands this. And fresh, जितना fresh होगा खाना उतना अच्छा है, क्योंकि उसकी जो प्राणिक वैल्यू होती है ना, जो उसकी प्राणिक कोशेंट होता है वो बहुत हाई होता है. Got it. Yeah. It's alive. Yeah. तो जितना आपका खाना अलाइव होगा ना, उतना अच्छा है. अभी आजकल जो मैं देख रही हूँ डाइट के मामले में बहुत कुछ बात हो रही है, मॉडर्न साइंस बहुत ज्यादा. It's good as well, but I think इतना ज़्यादा over उसकी ज़रूरत नहीं है, because the text has already said what's important and what's not. What you need to eat in the name of food
is sattvic food. What is the sattvic food? It takes less time to digest. इसको बहुत लंबा टाइम नहीं लग रहा है डाइजेस्ट करने में कुछ ना. एग्जांपल्स दे सकते हो साथ फ्रूट्स हो गए, वेजीज हो गई हमारी, में? हाँ, वो सब सात्विक में आता है ना. ठीक है. और राजसिक में हमारा कॉफी हो गई, और मतलब समथिंग दैट रियली एक्सेलरेट्स योर सिस्टम, wakes you up. That is Rajasic. Tamasic, it really slows down your digestion. Okay. For example, non-veg. Non-veg, yes. Garlic. नहीं, गार्लिक तो राजसिक है. Garlic है. हाँ, स्पाइस, हाँ, वो राजसिक ठीक है. है. हम इसमें मान सकते हैं ब्रेड्स हो गए, Breads are तामसिक. Yeah, they take longer time to digest. This is tamasic. Yes. तो जब भी हम खाने की बात करते हैं, मतलब योगा साइंस जो कहता है, जो योगिक साइंस है, वो कहती है कि क्वांटिटी में कहते हैं कि आपको इतना खाना चाहिए जितना आपकी हथेली में आए. ये क्वांटिटी की बात करते हैं. अच्छा. हाँ, तभी भी हम दूसरे गुरुद्वारे में जाते हैं या लंगर लगता है तो हमको खाना हम ऐसे ही लेते हैं, क्योंकि इतना ही आपका स्टमक का साइज है. यू कैन ईट 2.5 किलो तक ना, एक्सपैंड हो सकता है वो, लेकिन लीटर्स तक. लेकिन क्या आप उतना खाओगे? उसको स्पेस भी तो चाहिए. Not just because है इसका मतलब खा सकते हो, इसका ये मतलब नहीं कि खाना चाहिए. तो मॉडरेशन, आई थिंक मॉडरेशन इन एवरीथिंग इज द की. Yeah. तो आपकी क्वांटिटी में, क्वालिटी ऑफ द फूड, जितना फ्रेश हो सकता है उतना फ्रेश खाओ. मेरे को ऐसा लगता है जो अपना देसी इंडियन, जो अपना थाली, भारत का थाली होता है ना, बहुत बेस्ट है. वो हमारे लिए बेस्ट डिजाइंड है. उसमें Yeah. पिकल भी रहेगा, मुरब्बा भी रहेगा, और उसमें दाल भी रहती है, उसमें सब्जी भी रहती है, Yeah. और सैलेड भी रहता है, एक चपाती रहती है. तो दिस इज लाइक फुल मील. Yeah. और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम 6 टेस्ट की भी बात करते हैं. षटरस. हाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि जो डिफरेंट टेस्ट हैं खाने के, these are going to activate different centers in your tongue. Okay. And corresponding centers in your yes. Yeah. So क्या होता है इसका पूरा एक्सप्लेन कर. So you are activating those areas of your brain. क्या क्या एक्टिवेट होता है, क्या क्या. नहीं, ऐसे तो नहीं, but there are corresponding centers. Okay. तो मुद्दा और पर्पस यही है कि हमारे जितने भी सेंटर्स हैं ब्रेन, उनको उसको एक्टिवेट करें. तो you can activate it. One of the ways is eating. तो या सो मैंने एक और चीज सुनी है कि लोग क्या करने लगे हैं आजकल. जैसे आपको याद है जब मैं आपके पास आई थी, मैंने आपको बताया था कि 5 अलग-अलग चैप्टर आ गए. हाँ, मुझे समझ में नहीं आया था. देन आई केम टू इट, आई वाज लाइक यस, आई फाउंड, फाइनली आई हैव फाउंड. व्हाई डिड आई नॉट लाइक दोस प्लेसेस दैट है. फर्स्ट थिंग इज, कहीं पे हो रहा है एरियल योगा, कहीं पे हो रहा है बॉल योगा. तो बॉल योगा करा रहे हैं, उनका फोकस इस पे कि बॉल बॉल के साथ करनी है. पोज को कोई ध्यान नहीं दे रहा कि पोस्चर आपका सही है या नहीं है. एंड दैट इज व्हाई आई कुड नॉट encourage myself, because I've already understood, like I've experienced yoga for what it is. So after experiencing all of that, this was very impressive. People are doing beer yoga now. They're doing puppy yoga with a puppy on sides, Yeah. that you're stressed in Hmm. degrees, basically. So in a case like this, I mean, is this also a myth? ऐसी योगा exist करती है क्या? ये हमारे सूत्रों में लिखा है? बिल्कुल भी नहीं. मतलब जब हम योग अभ्यास की बात करते हैं तो हम मिनिमाइज करने की बात करते हैं. तो ओवर की तो जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड एनीथिंग मोर एक्स्ट्रा. या तो एक्स्ट्रा के नाम पे हमको बहुत ज्यादा प्रॉप्स की भी जरूरत नहीं है. एक्स्ट्रा के नाम पे हमको बहुत ज्यादा लाइक बियर इज लाइक, दिस इज लाइक नॉनसेंस ना. उस बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे. बट आई थिंक वी डोंट नीड अ लॉट. वी ऑलरेडी हैव अ लॉट. नाउ इट्स टाइम टू रिड्यूस. सिर्फ अपनी बॉडी तक आ जाओ. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और मैं ये ट्रेनर्स को एनकरेज भी करती हूँ, बिकॉज most of the time, you know, I have trained teachers. Yeah. It's just, you know, 2.5 years I have been into the studio setup. तो मैं हमेशा टीचर्स को यही एनकरेज करती हूँ और सजेस्ट करती हूँ, मत सोचो कि स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं. आप एंटरटेनर्स नहीं हो. You are the teachers and own it. Own it because you know it. You know how it's done.
और बोर्डम से ही स्टार्ट होगा योगा प्रैक्टिस ना. आप बोर हो रहे हो, होने दो उनको, कोई बात नहीं. डोंट जस्ट थिंक कि अरे आई लूज अ क्लाइंट. It's just because you lose a client, don't just change the full practice. Just stick to the roots. क्योंकि जब उनको real benefits दिखेंगे ना, वो कहीं नहीं जाएंगे. Stick to the roots, stick to what the text is saying. वैसे ही practices कराओ. बहुत ज्यादा over कुछ देने की जरूरत नहीं है. कुछ आसन, प्राणायाम practice होती नहीं है. प्राणायाम practice I've seen, the moment I say it's time for pranayam. And even the veggies are very good. Potato veggies. These are very बहुत tasty है. अच्छी बनी. because so I had the potato veggies with the chutney. It was nice. Power yoga for nature. But yeah, that's what it is. No, not staying home. But staying is important. Yeah, क्योंकि वहीं से ट्रांसेंड होता है ना. जब आप किसी पोज को होल्ड करते हो, let's say 5 seconds, yeah, and you're like बस 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अब नहीं. But then the trainer says hold for 3 more breaths. Yeah. तो वहां से क्या होता है, जब आपकी लाइफ में भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है ना, you breathe. So your trainer is saying it's okay, stay there, take 3 more deep breaths. वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी दिखने लगता है. So technically, pain is pretty important, right? Isn't it important? Because you have to stay in that pose. But I think what kind of pain, how we approach the pain. For me, this is not pain. Yeah. For me, this is training. है ना? तो ट्रेनिंग के दौरान कुछ कुछ चीजें होती हैं. Activation of your muscles, basically. Yeah. So it's basically activation, right? Yeah, it's not the pain. It's like a tapas. इसको tapas बोलते हैं ना? Like creating the environment where you are challenging your body to increase the potential of the body, or to know the potential of the body, or to have the regulation over the movement. ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ और मेरे हाथ यहाँ रुक जाए, पर रुक नहीं रहे. मेरी विल पावर से हो रही है चीज. So power yoga, क्योंकि ये बहुत सुना है power yoga, तो आप कभी ट्राई नहीं करी. But I also feel कि it's so important to retain those poses while you're doing that, क्योंकि that makes all the difference in the body. ये तो I agree. So if somebody wants to go beyond Instagram yoga, that is now existing, अब posts हो रहे हैं, they really want to learn and understand what yoga is. What is the right way? How to Find some pony yoga. Right, Sign up. Absolutely. So tell us a little about support yoga, your journey, how did you get into yoga? Because so much wisdom comes from experiences that have also been experiences that have made you suffer. Holding on, जैसे आपने बोलने की बात करी अपने लिए, hold on, and that is how we get better. Yeah. So what's your story? So my story is थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चलेगा? I started. I actually we used to have Vivekananda ji ke camps when I was kid, and my sister used to go. My older sister, she used to go to these camps. अब मैं भी लपक लेती थी. छोटी बहन थी. When I was, I think मैं बहुत छोटी थी. 5-6 years maybe. Your sister is older than you. No, मेरी बुआ की बेटी. Okay. Yeah. So she used to go. तो मैं लपक लेती थी कि मम्मी बरखा दीदी जा रही है, मैं भी जाऊंगी. तो विवेकानंद जी का जो कैंप होता था, उसमें ये सिर्फ सूर्य नमस्कार करवाते थे और कर्म योग करवाते थे. और ये हर साल समर वेकेशंस में लगता था. 2 बार गई मैं. That's where it stopped. ठीक है. Going forward to some time, let's say I am into my high school now, और 12th class. तो तब NDTV पे एक प्रोग्राम आता था, NDTV गुड टाइम्स पे, योगा सूत्रास. अच्छा. और योगा सूत्रा में आते थे ये, मतलब they were 2 people, Samara Chopra I think and Deepika Mehta, 2 yoga instructor. I was fascinated. Yeah. मुझे ऐसा लगा यार क्या प्रैक्टिस करते हैं. एंड आई यूज्ड टू वेट. 15 मिनट का ही आता था वो, सुबह मेरे ख्याल से संडे को सुबह 9-10 बजे करीब. आई यूज्ड टू वेट सब छोड़ के.
और मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि आई एम सो अट्रैक्टेड टू दिस। Yeah. तो मैं दे यूज्ड टू डू वर फैंसी पोस्चर्स ऑनेस्टली, पर मुझे उस समय उसी में देख के मजा आया। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑल द फैंसी पोस्चर्स, काफी चोट भी लगी मुझे। देन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, कुछ टाइम के बाद मेरी जॉब लग गई थी इसमें डॉइचे बैंक में। तो व्हाट हैपेंड, मैं घर आई और मैं चुपचाप से बैठी थी। आफ्टर आई क्रैक दिस इंटरव्यू, मम्मी ने मेरे को बोला कि क्या हुआ। मैंने कहा मम्मी समझ नहीं आ रहा है, यही करना है क्या मुझे, समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब फर्स्ट इंटरव्यू था, वो क्रैक कर लिया था, मैं खुश भी नहीं थी। So how are you, Shobitsa? All good, यार. All good. मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं, मतलब हमने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा फर्न के साथ आज। हमने खूब बातें भी करी, हमने टेरेस पे जाके योगा भी कर ली, और हमने वो ब्यूटीफुल सी लॉबी में बैठ के हाउस ऑफ कार्ड्स भी बिल्ड किया, एंड वी हैड सम प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड डीप कॉन्वर्सेशंस. So being here at Fern was absolutely an amazing experience. What do you think? Yes, Yeah, yes. it was Thank you amazing. so much, sir. Thank you very much. Thank you. So we had a great time, and we just want to ask you, we were just talking about healing, how yoga can heal you, Hmm. and on some level, I feel that travel can also heal you. Absolutely. तो हम वैसे पहाड़ों में ढूंढने जाते हैं उस, we try to heal ourselves when we go to the mountains. Recently, we also had an amazing trip to Ladakh, and we discussed that as well. So I want to ask you, what does Jaipur have जिससे कि आप heal कर सकते हो? See, healing is a very, in my opinion, healing is a very subjective term. It's Yeah. not an objective. You cannot define it in a formula. Yeah. You know, what can heal you, what can heal her, what can heal me, can be different. You know, water can heal, travel can heal, Abne Pahad can heal, Jaipur can heal, travel can heal, medicine can heal. Yeah. So healing is very subjective, and basically, what are you trying to focus on is very important. Now, coming back to the question, when you say Jaipur, now what Jaipur has to offer for anybody to come here and look forward? See, Jaipur holds a very, very deep heritage and cultural connect with the whole thing. So that is where the healing will happen, and in my opinion, and it's a very personal opinion, because anything which happens here in Jaipur has a deep-rooted connection with the culture, with the history. So that happens, and when you learn from your history, when you get into your history, when you see what has happened, what your people have gone through, you learn a lot, and that I think in certain terms can heal you. Because the color, the vibrancy, the warmth, जो यहाँ का खुलापन है, जो यहाँ का बेबाकपन है, जो यहाँ की आर्ट है, सब कुछ वो ऑफर करता है आपको इतना कुछ। अब उसमें से आप क्या पिक करते हो? आप यहाँ पे आके सिर्फ खाना पिक करते हो। हाँ जी, मैं यहाँ खाने आ रहा हूँ, मुझे दाल बाटी चूरमा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, मुझे यहाँ का लोकल खाना खाना है, वो आपको खाना कैन ऑल्सो हील बाबा। Am I right? Awesome. Yes. Yes. ये आप यहाँ पे आके शॉपिंग करना चाहते हो, you want to dig into the deep culture and the vibrant colors of Jaipur को तो आपको यहाँ पे मिलता है, उसमें आप आना चाहते हो। आप यहाँ की हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाहते हो, जो इतना कुछ ऑफर करता है, राजे रजवाड़े, इतना कुछ they have gone through to build this place up. तो आप उसमें से क्या लेते हो? And obviously, जब ये सब कुछ होता है, जब आपका मन रिलैक्स होता है, when you are relaxing is when you heal yourself. And that's my point. You know it better. Sure, But for me, it's very simple. When you are relaxing and when you are in the mood के बाद, now I am at peace, is when you start healing. Because when you're tense, you'll never heal. Yeah. तो यहाँ पे आके आप कहाँ पे peace ढूंढते हो? You will find it. सही For me, the culture, the color, the warmth, the food, everything put together in a thali Yeah. will heal you. Right. तो आप तो फिरोजपुर से हो, एंड जयपुर में आपकी फेवरेट चीज क्या है? व्हाट इज, लेट्स जस्ट से इफ यू वर टू गिव अस 3 things that you love about Jaipur. Okay. First thing, I'm a small town guy. Yeah. So I've stayed in various places. I've been to various places.
दुनिया घूम लिया, बड़े शहरों में रहे, दिल्ली, बॉम्बे, दुबई, एम्स्टर्डम, श्रीलंका, सब जगह रह लिया मैं. Now coming to Jaipur, it's like at home. ये ना तो बड़ा है, ना छोटा है. You get the cosmopolitan flavor in a very small bag. Yeah. So you, maximum distance, half an hour. Yeah. दिल्ली, बॉम्बे में half an hour तो आप कॉलोनी से बाहर जाने में निकाल देते हो. सही बात है. Am I right? बिल्कुल. यहाँ maximum distance half an hour. You are reaching the one and the other. Plus, लोग यहाँ के बहुत सिंपल हैं, बहुत साफ हैं, बहुत सुथरे हैं, बहुत दिल के खुले हैं, कोई दिल में मलाल नहीं है. So आपका उनसे कनेक्ट बहुत जल्दी बनता है. You feel at home. Yeah. So being a small town guy, so that particular feel about Jaipur has made me connect. मेरे को सब 3 साल ही हुए हैं यहाँ पे, 3 साढ़े 3 साल. I met some good friends here. I made some good connects sitting in front of me. So that has happened because of the people, because of the environment, all that. दिल्ली से गर्म ज्यादा नहीं है, दिल्ली से ठंडा भी ज्यादा नहीं है, पंजाब से भी थोड़ा सा बेटर है. हाँ, कम ही ठंडा है और कम ही गर्म. So सब कुछ है यहाँ. Ideal environment. क्यों ना कोई कनेक्ट करे. That is true. That makes sense. Simpler. And what do you miss the most about Firozpur? अगर 3 चीजों की बात करें. फिरोजपुर फैमिली है, घर है, फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ आ जाते हैं. मैं वहाँ चला जाता हूँ. अभी you mentioned about my trip. Yeah. When I went there, I was with friends and family. Yeah. So that is it. There is nothing, you carry your home here. Yeah. अगर आप यहाँ लेके चल रहे हो तो जहाँ बैठ रहे हो वहाँ घर बन जाता है. ऐसा नहीं है कि you miss, but yes, वो वहाँ पे आराम है. वो जहाँ बचपन में वो अलग बात हो. But yes, I'm pretty contented being in Jaipur. Jaipur is a beautiful place, and this particular property has lot to offer. Yeah. No, I agree. My property, this Yeah. Fun Habitat in center of the city, has lot to offer. The view on top from you have seen. Yes. The hotel as such in the middle of this thing, standing, offering perfect hospitality. And the food is amazing, as well. Yeah. We really enjoyed it. बहुत So- मजे आए हमको. So we are working towards it. I will not say we have reached everywhere. Yeah. Anything and everything that we have done is already done. And I feel Yeah. like the hospitality is also from the time that we've entered the property since morning. Everything has been so smooth. Yeah. Everything is just done. And everybody was Yeah. very helpful. very helpful. Very helpful. Thank you. Yeah. Thank you. So thank you so much, sir. We had a really good time, and we're starting a new journey from this place. You have probably already seen a few podcasts, but today we start a new journey where we completely change the format. So I wish you all the very best Thank you so for much. all your future endeavors. I know you are a wonderful person and with a beautiful smile, Yeah. and more than that, soul. Thank you so much. That's so beautiful soul Very that you kind. have. I am sure that you're gonna do because whatever you put your heart and soul into it, you do it. So my heartiest congratulations, Thank you so as much. well as all the very best to you for all the future. And I heard, ma'am, you're also moving to Spain. Wow. सब बता दिया मैंने. हाँ क्या? I was like, नहीं मैम तो स्पेन जा रही है हमें छोड़ के. I was so happy, I found my new instructor, and it's very rare that you find someone so good that you connect with. And then she, Good. It's okay. Wish you all the very best also. So you are moving with for work or for family? yeah, Husband is already there. Okay. It's a beautiful place. So one of the most जिंदगी tourist. मिलेगी ना दोबारा. हाँ वहाँ पे सब कुछ है, टूरिस्टी प्लेस है. चलो anyway, wish you all the very best, man. Hopefully जब हम next time स्पेन चक्कर मारे तो आपसे मुलाकात करेंगे. और आने के बाद दिल्ली जाना है सर. हम वहाँ पे अपने वस्तु को वैसे ढूंढते रहते हैं. कभी भी बाहर जाते हैं, कौन जानता है. Okay, thank you very much. Thank you sir. बहुत मजे आए. हाँ जी. Thank you. Take care. Wish you all the very best. Thank you so much sir. Thank you. हम अपनी सारी लाइफ निकाल देते हैं एक परफेक्ट हैप्पीनेस को सर्च करते हुए. बट आज अब अपने आप से पूछो, क्या आप सच में खुश हो? द स्ट्रेंज थिंग इज दैट बहुत सालों बाद व्हेन यू लुक बैक यू विल रियलाइज how much time you spent worrying. And happiness was there all along. This is what yoga teaches you. To be here,
to be in the present moment, to embrace it instead of waiting for another one. आपको शायद पता भी नहीं है, but within you already exists strength, the peace, and the awareness to live life to the fullest. Now the question is, are you going to find it? Are you going to recognize it? Or are you going to let it pass?